Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, in the last video we were discussing about the formation of Lok Sabha. We discussed that the formation of Lok Sabha has been described in section 81st of the Indian Constitution. We discussed that the total number of members in Lok Sabha are 545 at present, which can be 552 according to the provisions of the Constitution. Along with that, we discussed about the tenure of Lok Sabha mentioned in section 83rd of the Indian Constitution. Along with that, the major qualities required to be a member of Lok Sabha, which is mentioned in section 84th of the Indian Constitution. Along with that, in the last we discussed about the speaker and deputy speaker of Lok Sabha. So guys, there are four major sections related with the Indian Constitution which explain us about the speaker and deputy speaker. According to section 93rd of the Indian Constitution, the speaker and deputy speaker of Lok Sabha are appointed by the elected members of Lok Sabha from one amongst them. Okay, and लोक सभा के मेंबर ही अपने में से एक को स्पीकर और एक को डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट 94th सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. आफ्टर दैट 95th deputy speaker can work as the speaker, means the powers related to deputy speaker in situation of removal of speaker or absence of speaker to work as the speaker. And after that 96th section of the Indian Constitution which check the speaker and deputy speaker to use his power in the situation of proposal related to removal of the speaker of deputies or deputy speaker under process. Okay, so in this way we completed our discussion about Lok Sabha. Now here in this video we are going to discuss about the Rajya Sabha, means the second part of the Indian Parliament. According to section 79th of the Indian Constitution, there are three major parts. यानी पार्लियामेंट में three major parts हैं. Okay, 79th section के according प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन अबाउट लोकसभा. लोकसभा बारे में डिस्कशन कंप्लीट हो गया. नाउ एज द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राज्यसभा. ओके, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा. सो गाइज, एज वी डिस्कस दैट द फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा हैज बीन described in section 81st of the Indian Constitution. In the same manner, the formation of Rajya Sabha has been described in section 80 of the Indian Constitution. Okay, so the 80th section of the Indian Constitution is related with the formation of Rajya Sabha. Okay, means Article 80 of the Indian Constitution describes us about the number of members of Rajya Sabha. So the first point in the formation of Rajya Sabha is related with the number of members. Okay, the first point is related with the number of members in Rajya Sabha. So according to the provisions of Article 80 of the Indian Constitution, in Rajya Sabha maximum number of members can be 250. Okay, out of which 12 would be nominated by President, those who are excellent in the sector of art, science, literature and sports. Okay,
art, science, literature and sports. After that, the remaining members, which are 238, are elected. They are elected members. तो देखो फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा. ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम 250 हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट, आउट ऑफ दिस 250, 12 विल बी नॉमिनेटेड. उसमें से 12 नॉमिनेटेड होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट. और इसमें नॉमिनेशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो आर्ट, साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट्स का है. यानी ऐसे लोग जो एक्सेल हैं in the sector of art, in the sector of science, in the sector of literature, in the sector of sports, and along with that in the sector of social services. Actually, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पोर्ट्स वर्ड यूज़ नहीं किया गया. इसके अलावा रिमेनिंग 4 वर्ड्स हैं वो लिए गए हैं. स्पोर्ट्स वर्ड्स बाद में जोड़ा गया था. ये एक्चुअल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. ओके, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज. ओके, आफ्टर दैट रिमेनिंग 238 आर इलेक्टेड. और ये इलेक्ट होंगे बाय द legislative assemblies of the states. यानी elected members of the legislative assemblies of the states will be responsible for the election of members of राज्यसभा. यानी राज्यसभा में जो members होंगे वो 12 nominated होंगे और remaining 238 जो हैं elected होंगे. और ये elected members जो हैं वो legislative assemblies of the states और union territories के elected members के द्वारा elect किए जाएंगे. Is that clear? अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट है कि एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन वी कैन से दैट देयर आर 245 मेंबर्स इन टोटल इन लोकसभा. ओके, टोटल 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में. सॉरी, नॉट इन लोकसभा, इट इज़ इन राज्यसभा. आउट ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड एंड रिमेनिंग 233 आर फ्रॉम states and union territories. Means they are elected by the elected members of states and union territories. यानी इनके legislative assemblies के elected members के द्वारा 233 members को राज्यसभा में elect किया जाता है. Is that clear? अब यहाँ पे आपको एक और point बताते हैं and that is if we talk about the total number of members related with the states, means elected by the elected members of the legislative assemblies of the states, and they are 299. यानी इन 233 में से 229 members जो हैं वो तो legislative assemblies of the states के द्वारा elected होते हैं. remaining 4 जो हैं they are related with the union territories, means Delhi and Pondicherry. 3 from Delhi and 1 from पौंडीचेरी. यदि हम अलग अलग स्टेट्स का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करें दैन इट इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. ओके, एट फर्स्ट इट इज़ डिसाइडेड दैट 1 member will represent 10 lakh people. ओके, यानी ये डिसाइड किया गया कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जो होता है वो 10 लाख पीपल को रिप्रेजेंट करेगा. लेकिन यदि नंबर ऑफ पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा होती है दैन द क्राइटेरिया विल बी 20 लाख. यानी यदि नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो 50 लाख से ऊपर चला जाता है तो फिर उसके बाद में क्राइटेरिया चेंज होकर के 20 लाख हो जाता है. इज दैट क्लियर? ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मीन्स देयर आर 28 स्टेट्स इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ विच स्टेट हैविंग व्हाट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. सो गाइज, यदि हम ऊपर से नीचे तक पूरा कंप्लीट डिस्कशन करते हैं अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया दैन द डिफरेंट मेंबर्स elected from the different states are as following. Okay, यदि नंबर ऑफ मेंबर्स elect जो अलग अलग स्टेट से होते हैं उनको स्टेट वाइज डिस्कस किया जाए दैन if we talk about the eastern states of the country, hence the 7 sisters, then except Assam, all these states related with eastern India have 1 member as their representative in Rajya Sabha. Means the state of
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड will have one members as the representatives in राज्य सभा. ओके, यानी इन सारे स्टेट से वन मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं. फ्रॉम सिक्किम ऑल्सो 1 member will be there as the representative of सिक्किम इन राज्य सभा. असम से 7 members इलेक्ट होकर के आते हैं. ओके, तो ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री में टोटल मेंबर्स जो हैं वो हर एक स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक्सेप्ट असम. ओके, यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये से जितने भी स्टेट्स हैं जो ईस्टर्न पार्ट से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से रिलेटेड है, इन सारे स्टेट्स में 1 मेंबर्स होते हैं. असम में 7 मेंबर्स राज्यसभा के लिए आते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विथ जम्मू एंड कश्मीर. फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर देयर आर 4 members. ओके, आफ्टर दैट फ्रॉम Himachal Pradesh 3, from Uttarakhand 3, then from Haryana 5, from Punjab 7, from Rajasthan 10, from Gujarat 11, from MP 11, from UP 31, from Jharkhand 6, from Bihar 16, from West Bengal 16, from Chhattisgarh 5, from Odisha 10, from Andhra Pradesh 11, from Telangana 7, from Maharashtra total 18 members, from Goa 1, from Karnataka 12, from Tamil Nadu 19, from Kerala 1. ओके, तो ये अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में. हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में दे आर फ्रॉम यूपी, टोटल 31 members. ओके, और यदि यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए देन फ्रॉम दिल्ली 3 members एंड फ्रॉम पौंडीचेरी 1 member. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. टोटल होता है 233. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड विद द इलेक्शन, यानी फॉर्मेशन में नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. The members of Rajya Sabha are elected on the basis of single transferable proportional representation voting system by means of secret ballot is not related with the election of Rajya Sabha. It is actually related with the president. ओके, यानी इसमें बाय मीन्स ऑफ सीक्रेट बैलेट यूज़ नहीं करते हैं, इसमें ओपन वोटिंग होती है. सीक्रेट बैलेट प्रोसीजर जो होती है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होती है. ओके, तो इलेक्शन प्रोसीजर है कि इनको सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम से इलेक्ट किया जाता है. यानी इनके इलेक्शन के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम का मेथड यूज़ किया जाता है. और इस मेथड के अकॉर्डिंग राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स वोट कास्ट करते हैं. इज दैट क्लियर गाइस? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द मेजर क्वालिफिकेशंस टू बी अ member of Rajya Sabha. Okay, means which are the qualifications required in a person to be a member of Rajya Sabha. तो गाइज हमने लोकसभा की क्वालिफिकेशंस डिस्कस किया था कि सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशंस टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की क्वालिफिकेशन के लिए जो दोनों के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो सेक्शन 84 में मेंशन है. दोनों की एक साथ मेंशन है और इनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इसमें ये लिखा गया है. बाकी सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो सेम है, ओनली एज इज़ डिफरेंट.
Means the qualification required to be a member of Lok Sabha and to be a member of Rajya Sabha are just the same, except the age, which is 25 years in Lok Sabha and 30 years in Rajya Sabha. तो बाकी सारे qualifications तो same हैं, which are the first thing, he should be a citizen of India, then he should not be mentally disabled or bankrupt, he should not hold any office of profit under state or central government. Okay, आफ्टर दैट यानी वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेंटली डिसेबल्ड और बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर? अब जो डिफरेंट पॉइंट है लोकसभा और राज्यसभा की क्वालिफिकेशन में, विच इज रिलेटेड विद द एज. ओके, टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा द एज इज 25 years एंड ऑन द अदर हैंड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा द एज रिक्वायरमेंट इज 30 years. ओके, द एज रिक्वायरमेंट इज 30 years. तो क्वालिफिकेशन सिंपल सी है. He should be a citizen of India. He should not hold any office of profit under state or central government. Along with that, he should not be mentally disabled or bankrupt. And the last point, he should be of 30 years of age, यानी 30 years of age complete होनी चाहिए to be a member of Rajya Sabha. Is that clear, guys? Now after that, the next thing, which is related with the tenure. So according to the provisions of the Indian Constitution, Rajya Sabha is a permanent house. What I mean to say that is there is no tenure for Rajya Sabha. Rajya Sabha का कोई tenure नहीं होता है. Get there clearly, boy? So my dear students, राज्य सभा में कोई टेन्योर नहीं होता है. इट्स अ परमानेंट हाउस. ओके, सिंपल सा पॉइंट ये है कि राज्यसभा जो है वो कभी एक साथ डिसॉल्व नहीं होता है. मीन्स न तो राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर्स एक साथ इलेक्ट होते हैं और न ही उन सब की मेंबरशिप एक साथ डिसॉल्व होती है. इज दैट क्लियर, गाइज? Means as we discussed that the Lok Sabha can be dissolved by the president, but this thing is not applicable in Rajya Sabha. Rajya Sabha को president के द्वारा dissolve नहीं किया जा सकता and that's why it's a permanent house. Is that clear? So अब इसके बारे में information यानी राज्यसभा जो है उसके बारे में, उसके टेन्योर यानी उसके मेंबर्स के टेन्योर के बारे में इंफॉर्मेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली नहीं मिलती है. बट एज पर द प्रोविजंस मेंशन्ड इन सेक्शन 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1/3 members get retirement after 2 years. ओके, यानी क्लियरली तो राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर है वो मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें लिखा गया है कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं वो 1/3 आउट ऑफ टोटल 1/3 गेट रिटायरमेंट आफ्टर 2 years एंड एट प्लेस ऑफ दैम न्यू 1/3 आर अपॉइंटेड. ओके, यानी जैसे सेक्शन 83 क्लियरली मेंशन करता है कि लोकसभा का मैक्सिमम टेन्योर 5 year होता है, बीच में लोग राज्यसभा उसको प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन राज्यसभा के साथ में नहीं है. उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है सेक्शन 83 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो सेक्शन 83 के पार्ट 3 में लिखा गया है कि 1/3 मेंबर्स आफ्टर 2 years रिटायर होंगे और उनकी जगह न्यू 1/3 अपॉइंट होंगे. तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1/3 और यहाँ पे होगा 2 year एंड 2 years. 2 is equal to 6. तो इस हिसाब से tenure for a member of Rajya Sabha is 6 years. Is that clear, guys? Now the last and the most important point related with the formation of Rajya Sabha is the Speaker and Deputy Speaker of Rajya Sabha. So on the basis of the provisions or the sections related with the Indian Constitution, here we are going to discuss about the
officers of Rajya Sabha which are known as the speaker and deputy speaker. Okay, the officers of Rajya Sabha, the speaker and the deputy speaker. So guys, there are 4 major sections in the Indian Constitution related with the speaker, the chairman and vice chairman of Rajya Sabha. Okay, according to section 89th of the Indian Constitution along with section 64th of the Indian Constitution, the vice president of India, the vice president of India is the ex officio chairman of राज्य सभा. इज दैट क्लियर? तो राज्यसभा जो है उसमें वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है. यानी सिंपल सा पॉइंट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 64 और 89 में ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा वही इंडिया में राज्यसभा का चेयरमैन होगा. ओके, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा. नाउ वी टॉक अबाउट द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा. The next point is the deputy speaker of Rajya Sabha. ये भी सेक्शन 89 में ही मेंशन्ड है. उसके अकॉर्डिंग द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्य सभा इज elected by the elected members of Rajya Sabha. Okay, so deputy speaker is elected by the elected members of राज्यसभा फ्रॉम वन अमंग दैम. यानी डेप्यूटी स्पीकर जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी होता है जो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स अपने में से ही किसी एक को चुनते हैं. इज दैट क्लियर गाइज? आर यू गेटिंग मी? तो सिंपल सा पॉइंट है कि राज्यसभा में 2 ऑफिसर्स होते हैं, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो स्पीकर होता है. यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही स्पीकर होगा. ऑन द अदर हैंड डेप्यूटी स्पीकर तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अपने में से किसी एक को डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करते हैं. इट मीन्स नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ deputy speaker. Now after that the remaining sections related with the speaker and deputy speaker. Okay, so the remaining section are section 90, 91st and 92nd of the Indian Constitution. Okay, तो 90th section के according deputy speaker की removal process mentioned है. Mean to say that the vacation, resignation and removal of the deputy speaker is mentioned in the section 90th of the Indian Constitution. यानी 90th section के अकॉर्डिंग स्पीकर के बाद में जो डेप्यूटी स्पीकर होता है वो जनरली 6 years के लिए, यानी जब तक कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर होता है वो तब तक के लिए उस पद पे इलेक्ट होता है. उसके बीच में वो अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर कर सकता है टू दी chairman, to the vice president, or we can say that to the speaker. Okay, along with that he can be also removed by the process of impeachment. Okay, impeachment procedure के द्वारा भी उसको हटाया जा सकता है जिसमें एक मोशन पास किया जाता है. एक्चुअली इसको जनरली हम रिमूवल प्रोसीजर कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसीजर रेफर नहीं करते हैं. ओके, तो इसमें रिमूवल प्रोसीजर में एक मोशन पास किया जाता है बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विद मेजोरिटी. और यदि ऐसा होता है देन द स्पीकर, द डेप्यूटी स्पीकर वुड हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट. इज दैट क्लियर? ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट विद बाय पासिंग द पासिंग ऑफ द मोशन अगेंस्ट द डेप्यूटी स्पीकर. और ये सब मेंशन है सेक्शन
90th में। उसके बाद में है 91st और 91st और 92nd सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 91st सेक्शन के अकॉर्डिंग यानी आर्टिकल 91st के अकॉर्डिंग डेप्यूटी स्पीकर जो है वो वर्क करेगा एज स्पीकर इन द सिचुएशन ऑफ रिमूवल एंड रेजिग्नेशन बाय द स्पीकर, यानी जब स्पीकर अपनी पोस्ट पे नहीं है तो वहाँ उसकी जगह काम करेगा डेप्यूटी स्पीकर। और लास्ट सेक्शन है 92nd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिंपली ये मेंशन किया गया है कि यदि रिमूवल मोशन और प्रपोजल अगेंस्ट द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अंडर प्रोसेस है तो उन दोनों में से कोई भी मीटिंग्स को प्रिसाइड नहीं करेगा। यदि दोनों के अगेंस्ट है तो, और इनमें से किसी एक को है तो वो अपनी पोस्ट के ऊपर नहीं होगा जब तक कि उस मोशन उस प्रपोजल का डिस्कशन कंप्लीट नहीं होता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर डिस्कशन अबाउट द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, अबाउट द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। ओके, स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या स्पीकर होता है, जबकि डेप्यूटी स्पीकर राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स अपनी में से ही किसी एक को डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट पर इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीकर 5 इयर्स के लिए होता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का जो टेन्योर है वो 5 ईयर है, तो स्पीकर ऑफ द राज्यसभा का टेन्योर 5 ईयर होता है, जबकि डेप्यूटी स्पीकर का 6 ईयर होता है। इनमें डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर के एब्सेंस में स्पीकर की सारी पावर्स को यूज़ करता है, उनकी जगह काम करता है, और उनको हटाने के लिए एक अलग प्रोसीजर होता है जिसमें इम्पीचमेंट मोशन के जरिए वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। तो सेक्शन 67 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। वैसे ही डेप्यूटी स्पीकर को भी प्रपोजल ऑफ रिमूवल पास करके हटाया जा सकता है। इज दैट क्लियर गाइज? सो इन दिस वे वी डिस्कस्ड अबाउट द formation of Rajya Sabha. Okay, number of members, its tenure, along with that qualifications required to be a member of Rajya Sabha, and the speaker and deputy speaker. After that, if we talk about the major functions of the speaker and deputy speaker of Rajya Sabha, so they are just the same as we discussed in the लोक सभा, यानी फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया जाए तो वो लगभग सेम होते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था लोकसभा में। मींस ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा की सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। अलोंग विद दैट ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द वोटिंग, यानी जो भी वोटिंग होती है उस वोटिंग को कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पीकर की होती है। इसके अलावा स्पीकर जो होता है उसको इन द जनरल सिचुएशन इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द वोटिंग, यानी स्पीकर राज्यसभा का मेंबर नहीं है, इवन दैन ही इज अलाउड टू कास्ट हिज वोट इन डिसाइसिव सिचुएशन, यानी जब अपोजिशन और फेवर में इक्वल वोटिंग होती है, इन दैट सिचुएशन ही इज अलाउड टू कास्ट हिज वोट। स्पीकर का इलेक्शन जो होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम बाय मींस ऑफ सीक्रेट बैलेट प्रोसेस के जरिए होता है। स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और इस इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर इन द हाउस इज ऑल्सो मेंटेन बाय द स्पीकर, एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हाउस में राज्यसभा में वो भी स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इज दैट क्लियर गाइज? सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर डिस्कशन अबाउट राज्यसभा, अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। नाउ द रिमेनिंग थिंग्स related with the powers of the parliament, with the power of Rajya Sabha and power of Lok Sabha, we'll discuss in the next video. So guys, I hope this video will help you a lot to increase your knowledge, to build your knowledge, and it will make your knowledge everlasting. About the remaining things we'll discuss in the next video. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.